Satsang, we talk the truth, we talk the heart, transparency. I used to be a happy go lucky, seemingly a happy go lucky child, young man. Seemingly. That means, like all of us. Hi, how are you? And I'm fine. So I was like that. And everybody found me to be quite a happy go lucky, enjoying life. But I tell you, I share with you, there's a topic which was very dear to me. The topic of suicide was very dear to me. Suicide. So deep down, there was something which said, okay, life is worthless, useless, pointless, meaningless. So why am I living? Not why are we all living? No, I'm not bothered about everyone, but why am I living? Life is meaningless. So I did research on this topic of suicide, of people who commit suicide, and how does one do it? And then, is there a possibility that I might also do it someday? Seemingly a very happy go lucky man, partying and dancing and going places, looking like a hero. But within, this topic was very dear. So then I did research on it, and I researched in astrology, astronomy, palmistry, science, philosophy, psychology. And I concluded that my palmistry told me that it is not written in my hand. So it was like a very disappointing conclusion that even this is not possible. Even this is not possible. So that means I have to live meaninglessly, but I'll have to live. With the void, I'll have to live. Why? Because one of the lines in the hand tells you, do you have courage enough to do it? You can keep thinking of it, but do you really have courage enough to do it? It's written in the lines of the hands. So the pattern of my hand told me that I don't have that courage. Well, so that means I'll have to live with that void. Recently, I don't see movies, fortunately or unfortunately, but these days, during social interaction, some clips they do surface. And I am quite fascinated with this young man, Sushant Rajput. Very handsome looking, very genuine looking, thorough gentleman. And seemingly he committed suicide. That's the story goes. You see, he shares during his talks, he's a philosophical man. He shares that during his childhood, he was convinced by society, by his parents, that if he gets into an engineering college and becomes an engineer, that is success for the family as well as for himself. So he was convinced. So he tried, he slogged his best, and somehow he could get into the engineering college, the best of engineering colleges. So entirely satisfied. But by the third year in the engineering college, he was convinced that that void is still there. I am not happy. So that means he had courage also. He left the engineering college.
And he thought that something else perhaps would give him happiness. And that something else, he went into the TV world. And there he made success. He became quite a rich man, quite a successful TV actor, and a famous one. Now he says, I got used to it. He doesn't say it, but I am concluding he had the courage to give up all that. He says, I am not comfortable. So he went to try his luck in Bollywood. Maybe that will give him satisfaction. Maybe that might give him much bigger money, much bigger name, fame. And he achieved that also. He was a rising star, and I would say he was a star. So he became rich, famous, and a Bollywood star. That Dhoni movie really brought him to name and fame. But now he must have realized that the void is still there. Nothing has changed. And he had courage, which he had proven so many times. Left engineering college, left the TV world, fame, no Bollywood. So, but he had courage. He hanged himself when he died. We all are seeking fulfillment of that void which is within us. So, fortunately for me, unfortunately for him, I could sense, I could see that there is light somewhere. Life is not meaningless. We have to seek it. So my guru guided me to the light within me. And this topic of suicide, which used to be my favorite, thou continues to be a favorite, but I know how people are living with that void because, like me, they don't have courage. Nobody has courage to end this life, but people are living with that void. So my void got filled by searching in the right place, searching the right way. How cannot be put in words, but it got filled up. So it's called fulfillment. And Gayatri Mantra started coming out of me. Om Bhur Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhur Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया. It comes from inside you. It is not to be remembered. It comes from inside. ओम आधार है सृष्टि का. भू का फिजिकलिटी अर्थ का और अर्थ से ऊपर जो स्पेस है उसका और ब्रह्मलोक है जो उसका. भुव कह सकते हैं कि स्वर्ग है और स्वह कह सकते हैं कि ब्रह्मलोक. ये ज्योग्राफिक स्पेसेस नहीं है, आपके अंदर की सोच है, आपके अंदर की फीलिंग्स. भू मीन्स द flesh and bones, the mind. Bhuva means the chitta, and swaha means the akash. ये
ओम ही इन सब का आधार, एंड इट इज वर्शिपेबल. एवरीथिंग अबाउट यू इज वर्शिपेबल. Everything outside of you is worshipable. Everything is worshipable. Varenium, everything is respectable. If you are respectful, if you are respectful, then everything is respectable. So, Om सब चीज का आधार है, एंड सब चीजें जो हैं वो वर्शिपेबल हैं. वरेण्यम, तत्सवितुर वरेण्यम. तत्व होता है जो एसेंस है, सवितुर होता है जो सूर्य की लाइट से दिख रहा है. सूर्य नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखेगा. जो लाइट से दिख रहा है, सवितुर. सविता मीन्स सूर्य. सवितुर जो दिख रहा है, ये सब कुछ वर्शिपेबल है. क्योंकि आप इन सब चीजों में गलतियां ढूंढते हैं, सो जीना असंभव है. कोई भी चीज में कोई गलती नहीं है. सब चीजों का ओम आधार है. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि. भर्गो होता है, जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, लेट्स से, इज भर्गो. देवस्य होता है द्रविणम. विद्या च द्रविणम त्वमेव. जो आपकी ये आपके अंदर ये जो इम्प्रेशन छोड़ जाएगी, वो देवस्य होता है. दैट इज डिवाइन. Whatever imprint and impression it leaves inside you is divine. Whatever I'm giving you is Bhargo. भर्गो देवस्य धीमहि. इन सब चीजों पे, इस पे मैं सोचता विचारता ही रहता हूं सारा दिन. आई एम सेइंग इट फ्रॉम योर साइड. I keep meditating upon what I have eaten. I keep meditating, means I keep digesting whatever I've eaten. Whatever I eat, I keep digesting it. धियो यो न प्रचोदयात्. धियो क्या होता है? आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को ये ड्रिवन रखता है हमेशा. ये मेरी सोच विचार, मेरी फीलिंग्स मेरे को ऑल द टाइम ड्रिवन रखती हैं. मुझे अपनी स्पाइन को कोई योगासन करके सीधा रखने की जरूरत नहीं पड़ती. वो रहती ही सीधी है, क्योंकि वो कभी झुकती नहीं है, कभी बुझा नहीं होता हूं. ऐसे ही रहता. कैसे? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ये जो है ना ओम, मुझे हर वक्त ड्रिवन रखता है. एंड मे इट ऑलवेज कीप मी ड्रिवन. May it keep me always driven like this. This is the धियो यो न प्रचोदया. अपने ही अंदर आपके सब कुछ है. सब किछु कर में बाहर नाही. Otherwise, like unfortunately, who proved it to himself कि नहीं, ना तो इंजीनियरिंग से बात बनी, ना तो छोटी मोटी नेम फेम से बात बनी, ना तो एक स्टार बन जाने से बात बनी. तो चलो खत्म ही करो लाइफ. बट मोस्ट ऑफ अस खत्म तो नहीं कर सकते, सो वी जस्ट कैरी ऑन टिल द लास्ट ब्रेथ. ढूंढो अपने अंदर, एक अंदर क्वाइट है. हर एक चीज को कोई एक ध्रुव तारा चाहिए. द होल क्रिएशन circumambulates. It is not running astray. कोई भी चीज astray नहीं है इस दुनिया में. astray मतलब मीनिंगलेस, यूजलेसली जिंदगी कहाँ जा रही है. नहीं, हर एक चीज किसी के अराउंड घूम रही है. Be it electrons, they are moving around neutrons.
Be it Earth, which is moving around the sun, be it the sun and the galaxies, they're moving around Dhruv Tara. Everything is moving around a pole. So we all require a guru whom we can just circumambulate, जिसके अराउंड हम घूमना शुरू कर दें, तो then we are not astray, you know. Then we've got a direction, जो कि बस हमारी बात बन गई। जिसनू लग्गा तिस मिले, लग्गा सो परवान। लग्गा, जिसनू लग्गा तिस मिले, जिसको लग गई ना ये लगन, उसका लगन हो गया। Now we are Hindi speaking people, we can understand what it means. जिसनू लग्गा तिस मिले, लग्गा सो परवान। परवान मतलब बस बात बन गई, लगन हो गया। पृथ्वी कहाँ सूर्य के साथ लगन हुआ है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। उसको चाहिए भी बस कुछ नहीं इससे ज्यादा कि मैं मिल जाऊं, नहीं, बस मैं तुम्हारे राउंड घूमती रहूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आई हैव गॉट माई एक्सेस। गुरु इज व्हाट? एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? ध्रुव तारा है क्या? हमने तो उसको पोल स्टार इंग्लिश में बोल दिया। ध्रुव तारा कौन था? ध्रुव तारा was भक्ति embodied। ध्रुव, ध्रुव ने मांगा क्या नारद जी से? मुझे भक्ति दे दो। बस वो ध्रुव तारा बन गया। उसके अराउंड पूरी की पूरी दुनिया की गैलेक्सीज घूमना शुरू हो गई। We all require an axis around which we should move, otherwise we are astray। चिट्ठियों को जैसे मिल गया, जैसे एक नया सा पता, एक चिट्ठियों को, मेरी डिमांड्स को, मेरी डिजायर्स को, मेरी सीकिंग को एक पता मिल गया कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। जब मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, तो बस मेरे को पता चल गया, अब मेरे को नहीं, हमें इसी के अराउंड घूमते रहना। दैट इज व्हाट अ गुरु इज। दैट इज व्हाट व्हेन यू से वाहे गुरु, दैट इज व्हाट यू से आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया। क्योंकि मेरी लगन लग गई। वो लगन ही तो नहीं लग रही थी। अगर गैलेक्सीज की लगन ना लगी हो ध्रुव तारे के अराउंड, तो सब कुछ ही नष्ट ना हो जाए। अगर पृथ्वी की लगन ना लगी हो सूर्य के साथ, तो सब कुछ नष्ट ना हो जाए। और अगर सागर लहरों को छोड़ दे, तो लहरें कहाँ रह जाएं? लहरें इसीलिए तो लहरें हैं, मौज बोलते हैं लहरों को। मौज है क्योंकि उनको मालूम है कि नीचे है कोई, मगर हम भूल गए हैं कि हमारे साथ कोई है। गुरु मेरे संग है, सदा है नाले, ये हम भूल गए हैं। क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ता आपको, किसी न किसी फॉर्म में आपको पकड़ता रहता है। आप ही आगे 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 भागते रहते, वो नहीं छोड़ता। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। आपने तो उसको मार दिया हुआ है, गॉड इज डेड, कोई गुरु गुरु है नहीं, मगर वो नहीं छोड़ेगा आपको। उसको मालूम है कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम छोड़ सकते हो पर मैं नहीं छोड़ सकता। तुमको कभी नाराज हो जाना, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, वो नहीं बदल सकता। मौसम है, एनवायरनमेंट है, जो कभी कभी आप रूठ जाते हैं, कभी कभी आप मान जाते हैं, मगर वो नहीं रूठता कभी भी। अगर वो रूठ जाए तो फिर तो वो आप ही के जैसा हो गया। वो कभी नहीं रूठता, वो किसी ना किसी तरीके से आपका पीछा करता ही रहता है, और बोलता रहता है आपको, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो,
हमें साथ ले लो जहां जा रहे। हरे राम। वो नहीं छोड़ता आपको। आप मान लीजिए बात, वो नहीं छोड़ता। ये सांस खत्म हो जाएंगे मगर फिर भी वो नहीं छोड़ेगा। नया जन्म दे देगा, क्योंकि उसको तो आप चाहिए ना। वो नहीं मरने देगा आपको। इसीलिए पुनर्जन्म नेसेसरी है, क्योंकि उसको तो आप चाहिए ना। वो नया जन्म दे देगा। जब तक कि आपकी और उसकी आंखें दो आंखें चार ना हो जाएं और आपकी लगन ना लग जाए, आप भी क्यों ना, पृथ्वी क्यों ना हो जाए सूर्य की, तब तक ये काम चलता रहेगा। और जब दो आंखें चार हो जाएंगी तो पेट भर चुका होगा, मणिपुर जाग जाएगा, अनाहत जग जाएगा, सहस्रारा खुल जाएगा। फिर आपकी बात बनी हुई होगी। फिर पता होगा कि हाँ, सुइसाइड तो अगर किसी में हिम्मत है तो कर ही लेगा, मगर कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा जन्म दे दूं। सो जन्म तो फिर मिल ही जाएगा, जब तक कि आपके अंदर से गायत्री ना निकले। ओम। ओम भुवस्वः। तीनों लोक आपके, फिजिकलिटी मन जो नीचे की तरफ बहता है, बुद्धि और चित्त जो ढूंढते हैं कि कौन हो तुम, और आकाश जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, ये सब का आधार है ओम। और कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। कृष्ण है विस्तार यदि, तो सार है राधा। और राधा क्या है? अनकंडीशनल लव। बस मुझे प्रेम है तुमसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। राधा है। आराधना का मतलब राधा। धारा का मतलब राधा। धरा का मतलब राधा। धरा मीन्स आधार। धारा मतलब जो कभी रुकती नहीं, बहती ही रहती है। वो तो कृष्णा ने उसका नाम बिगाड़ा हुआ था, प्यार से उसको राधा बोलता था। अदरवाइज तो धरा है, वो तो आधार है, तो आराधना है। प्यार से तो हम किसी का नाम बिगाड़ ही देते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। हरे राम। मेरी बहन पापा बोलती थी मुझे, अभी पॉप्सी बोलती है। वो नाम बिगाड़ दिया। वो प्यार से कुछ भी हम बिगाड़ देते ना। हरे राम। सो कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। कृष्ण कैसे कृष्ण है? क्योंकि उसके पास राधा है। उसके पास एक अनकंडीशनल लव है, उसके ही दिल के अंदर। हरे कृष्णा। उस प्रेम को जगाओ, तो फिर हर कुछ वरेण्यम हो जाएगा। एवरीथिंग विल बिकम वर्शिपेबल। एवरीथिंग विल बिकम वर्शिपेबल। हरे कृष्णा। कोई भी चीज गंदी नहीं लगेगी। हरे राम। हम सीखते ही हैं जिंदगी भर, बचपन से लेके, ये गंदा ये बुरा, ये अच्छा ये गंदा ये ऊंचा, ये ऊंचा ये नीचा, ये अच्छा ये। सिद्धया असिद्धयो समभूत्वा। कोई हार जीत, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागत जब ऐसा बुझिया। फिर आप ऐसे हो जाएंगे जब गायत्री दिल से निकलेगा। गायत्री दिल से निकलेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, सुख ही सुख हो जाएगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। क्या सिमरो? कि तुम राधा हो, तुम प्रेम हो, तुम आत्म हो। आत्म स्वरूप लारा, प्रेम स्वरूप लारा। बंगारू, आप गोल्ड हो, ऑर्नामेंट ही नहीं हो,
गोल्ड हो। हरे राम, हरे कृष्णा। जो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण तो सीखते रहते हैं, पर भाव भी आए ना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का तो डाइजेस्ट करो ना, ये मैसेज को डाइजेस्ट करो, एसिमिलेट करो, बन जाओ। जो सुनो वो बन जाओ। तो क्या होगा? धियो यो न प्रचोदयात्। Then he will always keep you inspired. Who is he? Satya Sai Baba. Nahi, he is Krishna, he is Allah, he is Brahman, he is anything you call him. He is Guru. Don't give him such names. If you give him one name, then you become fanatic. Don't become fanatic. कौन नहीं है भगवान यहाँ? हर चीज आपको इंस्पायर करेगी फिर। Every molecule of air will inspire you. फिर सुइसाइड की जरूरत नहीं है। फिर यूथनेसिया हो चुका होगा, यूडेमोनिया हो चुका होगा। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। जीने का नशा आ जाएगा मरने के बाद। फिर क्या यमराज से कोई डर थोड़ा लगेगा? फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसके बाद। सुसाइड की जरूरत थोड़ा है कोई। तो आपकी बात बनी हुई है, ऐसे ही आप भर जाएंगे। कोई वॉइड नहीं रहेगा अंदर। खिले हुए फूल के जैसे, नरगिस के जैसे घूमेंगे, खुशबू आएगी। हरे कृष्णा। कोई बच्चा बूढ़ा न रह जाएगा, सब कुछ हसीन हो जाएगा, सब कुछ इतना जवान लगेगा। मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवान। मोहब्बत की दुनिया का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मोहब्बत की दुनिया को ही तो ब्रह्मलोक बोलते हैं ना। हर आदमी का क्वेश्चन होता है, आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? अरे तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बट इट्स सोशल क्वेश्चन। सो मैं भी बोल दिया करता हूँ कि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। ब्रह्मलोक में ही तो रहना चाहिए। सचखंड में रहना चाहिए, झूठखंड में क्यों रहना है? सचखंड में वास करो, प्रेम लोक में समा जाओ। कृष्णा, ब्लेस योर सेल्फ। उद्धरेत आत्मनात्मानम, ना आत्मानम अवसादयेत। In one word, what does it mean? Bless yourself. Get back in love. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Intellectual world से परे, Hare Krishna.